آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جھٹپٹے کا وقت تھا، آسمان پر کہیں کہیں سرمئی بدلیاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ سرے شام کیاریوں کو پانی دیا گیا تھا جس کے باعث فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو کے علاوہ انواع اقسام کے پھولوں کی مہک رچی تھی۔ جامن کے پیڑ پر کوکتی کوئل کی کوک اور دور چکی کی چک چکا چک کی آواز میں عجیب سا تال میل تھا۔ وہ 18 روز بعد زید کے آنے کی خبر سن کر حویلی آیا تھا۔ صحن عبور کرتے وہ لمبے برآمدے کے 3 سٹیپ چڑھ کر آستین موڑتا اپنے ہی دھیان میں تھا کہ چھناکے کی آواز پر نگاہ دائیں جانب اٹھی تو ہاتھ ایک زاویے پر ساکت رہ گیا۔ وہ سرمئی اور سرخ لون کے خستہ حال سوٹ میں ملبوس تھی اور آنے والے کی طرف بے خودی سے متوجہ تھی، جبکہ آنے والے کو بھی اپنی بصارتوں پر شبہ ہوا۔ کیا وہ اجڑے حال لڑکی عدن بلال ہے؟ وہ عدن بلال جس کی شاہانہ شخصیت اور وقار کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قائل تھا؟ وہ شہزادیوں جیسی آن بان والی کیسے بھکارن کے روپ میں کھڑی تھی؟ تبھی ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر ہال کمرے کی باہر آتے زید کی طرف متوجہ ہوا تو لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ عدن کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ زید گرم جوشی سے بھائی پکارتا اس کی طرف لپکا۔ کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ تم تھوڑا کیوں نہیں مل جاتے؟ اس کی پشت پر نگاہیں جمائے عدن بے بس ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی اماں؟ زید نے بے یقینی سے تائی کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دکھ، حیرت، بے یقینی کیا کچھ نہ تھا لہجے میں۔ یہ ہم نے نہیں کیا۔ ان کا انداز روکھا سا تھا۔ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اب کی بار وہ ماں سے مخاطب تھا۔ سکندر۔ ماں نے گہری سانس لیتے گویا اعتراف جرم کیا، جبکہ اس بار لگنے والا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ پایا۔ فیروز چاچو جانے کب وہاں آئے تھے اور اب اس کے شوق چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ سکندر بھائی اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے یقین لہجے میں خود کلامی کرتے اس نے تائی کو گھورا۔ اس میں ظلم والی کیا بات ہے؟ تائی کے سرد انداز پر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہے بڑی امی۔ زید تم اس معاملے سے دور رہو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کا معاملہ ہے نا، تو اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے۔ تمہیں کیوں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ تائی نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تو زید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجھے اس سے نہیں اپنے بھائی سے ہمدردی ہے۔ اگر تمہارا کوئی جوان سال بیٹا دنیا سے جاتا اور یہ منحوس لڑکی بدلے میں یہاں آتی، تب میں دیکھتی کہ تمہیں کس سے ہمدردی ہے زید۔ تائی کا لہجہ بھرا گیا۔ عابدہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچے اور اپنے بیٹے کو گھورا۔ معافی مانگو زید تائی سے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے اماں؟ اور بھائی؟ زید، اماں نے درستی سے اسے ٹوکا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گے اور معافی مانگو۔ I'm sorry بڑی امی۔ آنکھوں میں ہٹ دھرمی اور تنی گردن کے ساتھ سوری کہتے وہ جھٹکے سے اٹھ کر ڈیرے پر سکندر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جس اعتماد اور مان بھروسے پر بھائی کے پاس گیا تھا اس سے دگنی شکستگی سے اپنے ٹوٹے مان کی کرچیاں لیے پلٹا تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر وہ پچھلے 25 منٹ سے پیدل چل رہا تھا۔ بادامی قمیض پسینے میں بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی۔ دن کے 2 بجے کا وقت تھا، سورج خوب چمک رہا تھا، مگر وہ موسم کی شدت سے بے نیاز بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ پاؤں کے نیچے مٹی کا ڈھیلا آیا تو وہ لڑکھڑا گیا، پھر جھک کر ڈھیلا اٹھاتے پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ پلیز مجھ سے اس انداز میں بات مت کریں بھائی، میں آپ کی بے رخی سہ نہیں پاؤں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو زید، یہ میرا اور اس خاندان کا مسئلہ ہے۔ وہ اس خاندان کا نہیں، اس لڑکی کا معاملہ ہے جو آپ کی بیوی ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ سکندر کے 3 حروف نے زید کے منہ پر گویا تماچا دے مارا تھا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے سے دور رہو تو تمہیں دور رہنا چاہیے، نہ کہ بحث کرتے جاؤ۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ زید نے ضبط سے سرخ پڑتی نگاہیں سورج پر جمائیں تو آنکھوں میں شدید جلن کے باعث نمی چھا گئی۔ اذیت کی انتہا تھی، مگر پھر بھی ان لفظوں کی شدت سے کم جو سکندر نے کہے تھے۔ سکندر نے آج ایک ہی جھٹکے سے اسے دور کر دیا تھا۔ وہ جو باپ کے بعد ان کے لیے باپ بن گیا تھا، دوست، ہمزاد، جس سے وہ دونوں بھائی بلا جھجک ہر بات منوا سکتے تھے۔
आज वही कह रहा था कि उसके मामले से दूर रहो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी 3 पहियों की बाइक उसके पास रुकी। पागल हो गए हो जैद? फिरोज चाचू ने उसे झिंझोड़ा। काश हो जाता चाचू, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, घर चलो जैद। अभी नहीं। अरे मैं कह रहा हूं तुम घर चलो। फिरोज चाचू को उसकी हालत तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मुझे नहीं जाना। ठीक है फिर, मैं भी इधर ही हूं। फिरोज चाचू ने भी उसी के अंदाज में कहते हुए निगाहें सड़क पर जमाई। प्लीज चाचू आप जाएं, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी इधर ही रहूंगा। उनके अटल अंदाज पर उसे मानना ही पड़ा और 45 मिनट बाद वो फ्रेश होकर चाचू के कमरे में उनके बेड पर बैठा था, जबकि वो अफसुर्दगी से बोल रहे थे। जब भाईजान ने बदले के लिए उस लड़की के साथ मेरा नाम लिया था तो मैंने सुनते ही इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपने अधूरे वजूद का बोझ किसी नातवा कंधों पर नहीं डालना चाहता था। जैद ने बेसाख्ता चाचू के निचले धड़ की तरफ देखा। 8 बरस कबल एक भयानक हादसे में जहां जैद ने अपने बाप को खोया था, वहीं वो हादसा फिरोज चाचू को भी उम्र भर के लिए माजूर कर गया था। डीआई खान से वापसी पर 2 भाइयों फैजान और फेरोज की गाड़ी गहरी खाई में गिरी थी, जिसके बायस फैजान तो मौके पर ही खालिक के हकीकी से जा मिले थे, जबकि फेरोज दोनों टांगों से माजूर हो गए थे। सच बताऊं तो जैद, मुझे पहले से ही मालूम था यहाँ इस लड़की को कोई कबूल नहीं करेगा, इसीलिए इनकार कर दिया था कि मैं उसे इसका हक दिलवा भी नहीं सकता था। तो फिर भाई ने सिकंदर का नाम तजवीज़ कर दिया। जानते हो तुम, सिकंदर ने ना सिर्फ आरिफ भाई जैसी शक्ल पाई है, बल्कि आदत और तबीयत भी वैसी ही है। बिल्कुल आरिफ भाई वाली जिद्दी तबीयत। अगर किसी बात पर अड़ जाए तो किसी की मजाल नहीं कि उसे फैसले से हटने पर मजबूर कर सके। बहुत अजीब तबीयत है तुम्हारे भाई की, अखरोट जैसी। वो बहुत नरमी से भतीजे का जिक्र कर रहे थे, फिर जैद की तरफ देखा। वैसे एक बात है जहद, है तो खड़ूस मगर यार वो है बहुत प्यारा। वो हंसे तो जैद भी मुस्कुरा दिया। बिलाशुबा सिकंदर बहुत हैंडसम और वजी नौजवान था। 6 फुट कद, शफाफ रंगत, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सुरमई पुरकशिश आंखें। न जाने उसके चेहरे में कैसा चार्म था जो दिल उसकी जानिब खिंचता था। जितना भी गुस्सा हो उसकी सूरत देखते उड़नछू हो जाता था। आप कह रहे थे भाई की तबीयत आरिफ ताया अबू की तबीयत जैसी जिद्दी है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो कभी नोट नहीं किया ऐसा। ताया अब्बू और जिद्दी तबीयत, बात मेरी समझ में नहीं आई चाचू। तुम आपा वाले किस्से को भूल गए हो क्या? फुप्पो का कैसा मामला चाचू? कभी देखा ही नहीं उन्हें, वो कहाँ हैं? देख भी कैसे सकते हो, 22 बरस कबल उन्हें देश निकाला दिया जा चुका था। उन्होंने अफसुर्दगी से कहते निगाहें छत पर जमाई। प्लीज चाचू बताएं ना, ये क्या मामला है फुप्पो का? वही मामला जो रवायती जागीरदार घर वालों का खासा है। सफदर मलिक भाई साहब के ही बेहतरीन दोस्त थे। ना जाने उन्होंने कैसे आपा को देख लिया, फिर इज्जत से रिश्ता भेजा, मगर भाई साहब ने उसे अना का मसला बना लिया और इनकार कर दिया। लेकिन अब्बा जी ने सफदर साहब के बारे में छानबीन की और रिश्ता कबूल कर लिया। इस बात को आरिफ भाई साहब नहीं भूले अभी तक। कमाल है चाचू। अच्छा तुम इस किस्से को छोड़ो, तुम क्या चाहते हो सिकंदर के मामले में? मेरे चाहने से क्या हो जाएगा चाचू? फिर भी पता तो चले। मैं चाहता हूँ भाई अदन को बहसियत बीवी कबूल करें। अरे कर तो लिया है कबूल, वो भी 3 बार, अब मजीद क्या करे भाई? इसे कबूल करना कहते हैं चाचू? खुद शहर में डेरा जमा रखा है, बीवी को मुलाजमा की हैसियत देकर कॉल कोठरी में डाला हुआ है। आपने उस लड़की की हालत देखी, कैसी खस्ता और उजड़ी हुई है। चाहे जैसे ही हालात में सही, लेकिन चाचू वो अब इस घर की बहू है। देख तो सब कुछ रहा हूँ बेटा कि अगर हमने उस लड़की को सिकंदर के बारे में सच्चाई बताई तो फिर किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। चाचू क्या आपको भी गुस्सा आता है अदन पर? मुझे क्यों आता होगा गुस्सा? उसके बाप की वजह से हमने सैफ को खो दिया है ना। हाँ बेटा गुस्सा तो है, मगर उसके बाप पर। जवान बेटा खोना आसान नहीं, मगर हकीकत ये भी है ना कि लिखा कोई टाल नहीं सकता। और मैं ऐसे मर्दों की मर्दानगी पर लानत भेजता हूँ जो खुद को बचाने के लिए बहन बेटियों को कुर्बान कर देते हैं। सुना तो यहाँ तक है कि बहुत नाजों से पाला था बेटी को, और सूरत हाल ये है कि जब से इस घर में उसको दिया है, पलट कर नहीं पूछा कि आया वो जिंदा भी है या मर गई। तुम दुआ करो जैद, सिकंदर का दिल उस बच्ची के लिए नर्म हो जाए।
और दिल नरम कैसे होते हैं चाचू? मोहब्बत से। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। इसके अलावा कोई जज्बा इंसान का दिल नरम नहीं कर सकता। और मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत की ना तो वजूहात होती हैं ना अलामात, कि ये कोई मर्ज नहीं, ये तो बस हो जाती है, और जब हो जाती है तो इंसान को बदल भी देती है। तो अब हमें दुआ मांगनी चाहिए कि सिकंदर साहब को भी मोहब्बत हो जाए। जैद हंसा तो वो भी मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल। वैसे एक हकीकत और भी है, बताऊं तुम्हें? वो क्या चाचू? ये जो मोम का दिल रखने वाले लोग खुद पर मसनूई सख्ती का खोल चढ़ा लेते हैं ना, उसे उतारना बहुत आसान होता है। सही कहा चाचू आपने। एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दें। अगली सुबह जैद ने किचन में मसरूफ अदन से कहा तो वो पलटकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। निगाहों में नर्म सा तासुर था। जैद ने हैरानगी से उन तासुरात को नोट किया जिस जैद के चेहरे को देखकर अदन के माथे पर बल पड़ जाते थे। उसके लिए ऐसे नर्म तासुरात बाइसे हैरत ही तो थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फाइन। मुझे तुम्हारी याददाश्त पर शक है अदन, कहीं खो तो नहीं गई ना, या फिर मेरी शक्ल ही भूल गई हो? मैं जैद हूँ। मेरी याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है जैद। बहुत दिनों बाद किसी ऐसे इंसान को देखा है ना जिसे सजा के दिनों से कबल देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैद को उसके लहजे से खौफ आया। अदन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे भाई के लिए कभी बद्दुआ मत करना। मैं ऐसा क्यों करूंगी जैद? इससे कबल के वो कुछ कहता सफिया वहां आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जैद? जाओ यहाँ से। जैद झटके से पलटकर बाहर निकल गया। और लड़की? अब उन्होंने अदन को घूरा। जाओ तुम अहमद के कपड़े इस्त्री करो। और उस अहमद नाम ने दिल की बस्ती को तहबाला कर दिया। या अल्लाह, आज उस शख्स से सामना ना कराना, मुझे इस आजमाइश में मत डालना। किसी के निकाह में होते हुए मैं नामहरम को सोचती हूँ। वो कमरे की तरफ जाते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ गो थी। मगर आप तो जानते हैं ना अल्लाह मियाँ, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। गोया वो अल्लाह पाक को अपनी सफाई पेश कर रही थी। काश वो शख्स इस वक्त कमरे में ही हो, उसे एक नज़र ही सही देख तो लूं। दहलीज तक पहुंचते अपनी साबका दुआ को फरामोश करते उस शख्स को देखने की चाह ने उसे बेबस किया, तो फिर दुआ मांगी। अपनी बेबसी पर आंखें बेसाख्ता नम हुईं। तेजी से पलके झपक कर नमी अंदर उतारते खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हो गई। निगाह सीधी बेड की तरफ गई जहां कपड़ों को होना चाहिए था, मगर कमरे का मकीन भी मौजूद नहीं था। क्या करूं अब? वो कराही, न जाने क्या चीज उसे रुला रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। खुशबू का मखसूस झोंका अंदर आया तो निगाह झुक गई। उसके सामने एक चिट बेड पर फेंकी गई। अदन ने चिट उठाई जिस पर एक जुमला लिखा था, ब्लैक शर्ट प्रेस कर दो। उसने निगाह उठाई। वो राइटिंग टेबल के पास खड़ा था। ट्राउजर पर सफ़ेद टी शर्ट, बेतरतीब बाल। अलमारी से शर्ट लेकर वो पलटी तो वो बरहम तासुरात के साथ उसकी तरफ मतवज्जा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अरे क्या खता हो गई मुझसे? उसे हाथ से रुकने का इशारा करते खुद आगे बढ़कर नई शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और फिजा में हाथ से जिग जैग करते जाने क्या कहा। अदन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। अहमद उससे मुखातिब था। या अल्लाह, मगर उसकी बदकिस्मती के उसे इशारों की जुबान समझ में नहीं आती थी, और सामने वाले को भी उसके तासुरात से अंदाजा हो गया कि वो भैंस के सामने बीन बजा रहा है। इसीलिए तेजी से राइटिंग टेबल पर झुकते लिख कर उसके सामने कहा, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं अभी लाती हूँ। वो तेजी से बाहर निकली और जब अहमद शॉवर लेकर निकला, ऐन उसी लम्हे वो भी अंदर दाखिल हुई थी। शर्ट लेते सर हिलाया, यानी थैंक यू। नाश्ता यहीं ले आऊं साहब? उसने सर को नफी में जंबिश दी। अहमद ने सवालिया अबरू उठाते उसे घूरा, मगर अदन पर जरा जो असर हुआ हो। तासुफ से सर झटकते नोट पर जुमला लिखते उसकी निगाहों के सामने किया, तुम जाओ, मुझे शर्ट चेंज करनी है। अदन पर घड़ों पानी पड़ा। वो गोली किसी तेजी से कमरे की चौखट अबूर कर गई। आखिर तुम्हें ऐसी बेमसरफ चीजों की जरूरत क्यों पेश आ गई है? अदन ने रुमैसा को बुरी तरह घूरा। वो अदन को जबरदस्ती शॉपिंग के लिए घसीट लाई थी। उसने बहुत इनकार किया, मगर वो रुमैसा ही क्या जो किसी की मान ले। फोन पर उसके बाबा से इजाजत लेकर वो उसे अपने हमरा ले आई थी। एक दो ड्रेसेस के बाद पिछले 25 मिनट से वो डेकोरेशन पीसेस का पोस्टमार्टम कर रही थी, जबकि अदन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ज्यादा अरसा नहीं हुआ था उनकी दोस्ती को।
अदन बिलाल का ताल्लुक गोट सहराब नामी गांव से था। 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन तो बाप की जान भी अदन में मुकीद थी। वो अपने खानदान की पहली लड़की थी जो हवेली की 4 दीवारी से बाहर यूं पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम थी। सर्व कद, दुबली पतली, खिलती गंदुमी रंगत, गहरी सब्ज आंखें, लंबे स्याह सिल्की बाल, मजमूई तौर पर वो बहुत पुरकशिश थी, जिसकी जात में बाप भाइयों का दिया भरोसा झलकता था। उसका वक़ार रख रखाव उसे सैकड़ों में मुमताज करता था। सिनफे मुखालिफ के लिए अदन बिलाल चैलेंज थी, जबकि रुमैसा शहर ही में रहती थी। इस वक्त रुमैसा स्याह और जर्द पजामे फ्रॉक में मलबूस थी। वो झुंझलाकर एक जगह टिक गई, जबकि रुमैसा आगे बढ़ गई। तभी रुमैसा ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। उसने कदम बढ़ाए, फिर बौखलाकर सर से फिसलती चादर पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर चादर ढलक कर शाने तक आ गई। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पलटी और अपने पीछे मौजूद लड़के के चेहरे पर, जिसके हाथ में चादर का पल्लू था, पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा। चिट्टाख की जोरदार आवाज पर रुमैसा के अलावा दूसरे लोग भी मतवज्जा हुए, जबकि अदन तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रुमैसा भी तेजी से पीछे लपकी। अदन प्लीज रुको। उसने गाड़ी में बैठते ठा की आवाज से दरवाजा बंद किया। माय गॉड, इतना गुस्सा अदन। रुमैसा ने खुद को सीट पर गिराते झुरझुरी ली, फिर अदन का सुर्ख चेहरा देखा। तुमने बिना सोचे समझे उस लड़के को थप्पड़ दे मारा अदन। बिना सोचे समझे रुमैसा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना शदीद रद्द अमल दिखाया। छोटी सी बात? किसी के सर से यूं सरेआम चादर उतारने का मतलब जानती हो तुम रुमैसा? उसने दांत पीसे। मैं जानती हूं अदन, मगर वो लड़का बेकसूर था। उसने तुम्हारी चादर नहीं खींची थी। तुम ये बात कैसे कह सकती हो, जबकि पल्लू मैंने खुद देखा उसके हाथ में। अरे बाज औकात आंखों देखा भी सच नहीं होता अदन। मैं देख रही थी सब कुछ। तुम्हारी चादर आराइशी गुलदान में अटक गई थी, लेकिन इससे कबल कि वो गुलदान गिरता, उस लड़के ने गुलदान संभालते हुए पल्लू छुड़ा लिया और बदले में तुमने उसे इतने लोगों में बेइज्जत कर दिया। अरे तुम जो भी कहो, मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर ऐसा किया था। अरे यार, मैं सच कह रही हूँ अदन, वो लड़का ऐसा नहीं है। तुम उसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे मामे का पुत्र है क्या? अरे तुम तो वाकई बहुत पहुंची हुई हस्ती हो अदन। मेरे मामू का ही बेटा है वो। उसने शरारत से अदन का गाल छुआ तो वो ऊं करके रह गई। किताबों की दुकान की पार्किंग में गाड़ी रोकते रुमैसा उसे ये कहकर वहीं छोड़ गई थी कि तुम्हें साथ ले जाना रिस्क से कम नहीं, इसीलिए यहीं इंतजार करो। उसे कौन सा शौक था जाने का, इसीलिए मुतमईन सी बैठी थी। उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजरकर सुरमई रंग की गाड़ी ऐन सामने आकर रुक गई। उसने बिला इरादा उस तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर बराजमान शख्स की मजबूत कलाई पर बंधी बेशकीमत घड़ी का डायल धूप के बाइस चमक रहा था। दरवाजा खोलकर एक दराज कद वजी नौजवान बाहर निकला। मस्टर्ड शर्ट के कफ मुड़े हुए थे। बालों को हाथ से संवारता वो गाड़ी लॉक किए बिना आगे बढ़ गया। अदन बिलाल ट्रांस किसी कैफियत में उस मंजर में गुम थी। क्या खास था उस शख्स में? वो अपनी धड़कनों की बदलती रिदम पर हैरान थी। तभी रुमैसा वापस आई, मगर अपनी गाड़ी में आने की बजाय उस गाड़ी के शीशे के डैश पर झुकी फाइल का सफा पलट रही थी। तभी वो शख्स तेजी से पलट आया। रुमैसा के साथ अदन का चेहरा भी फक हुआ। वो शख्स बहुत जल्दी में उनकी तरफ ध्यान दिए बिना गाड़ी भगा ले गया। जैद बेटा, आज तुम शहर जाओगे? माँ के पूछने पर उसने फोन से निगाह हटाई। नहीं अम्मा, खैरियत कोई काम था आपको? हाँ, बस थोड़ी खरीदारी करनी थी। वो उसके पास बैठी तो जैद ने फोन रख दिया। ठीक है, फिर सिकंदर ही के साथ चली जाऊंगी। जैद ने पानी लाती अदन की तरफ देखा। सिकंदर के जिक्र पर भी उसका चेहरा बेरंग ही रहा था। एक तो ये लड़का शहर और डेरों के चक्कर में घन चक्कर बना हुआ है। माँ तो शक्ल देखने को तरस जाती है। जैद उनके शिकायती अंदाज पर मुस्कुराया। शक्ल जो इतनी प्यारी है। सुनो अदन, उसने बेसाख्ता पलटती अदन को पुकारा। तभी ताई भी वहां चली आई। उन्होंने बगौर जैद का अंदाज देखा। मेरा मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा दो और कपड़े प्रेस करो, मुझे अम्मा के साथ जाना है। जी, उसने सादतमंदी से कहते हुए मोबाइल ले लिया। कपड़े इस्त्री करने से कबल शरीफा से कहो सब्जी ले आए और तुम चाय बना दो। आबदा के हुक्म पर सर हिलाते अभी पलटी थी कि ताई ने कहा, ए सुनो लड़की। उसे रुकना पड़ा। गहरी सांस लेते उनकी तरफ देखा।
چائے بنا کر پچھلے صحن میں کنویں سے 2 بالٹی پانی نکال لاؤ۔ اس حکم پر اس کا چہرہ فک ہوا کیونکہ اسے گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا۔ آپ نے عدن کو کنویں سے پانی نکالنے کا کیوں کہا تائی اماں؟ زید نے اس کے جاتے ہی حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس لڑکی کو کنویں سے ڈر لگتا ہے۔ ارے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے وہاں بھیجا؟ کیوں تائی اماں؟ کیونکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ تائی کے لہجے کی صفاقی پر وہاں سکوت چھا گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ گاڑی جب آگے بڑھی تو رمیسا نے کلمہ شکر پڑھا۔ عدن بھی چونک کر حواس میں لوٹی۔ تم نے اتنی غیر اخلاقی حرکت کیوں کی رمیسا؟ اگر وہ شخص دیکھ لیتا تو دیکھ لیتا نا یار، نام معلوم کرنا تھا اس بندے کا۔ وہ بھی نام جاننا چاہتی تھی اس شخص کا جس پر پڑنے والی پہلی نگاہ نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا، مگر اس کے شانوں پر باپ بھائیوں کی عزت اور بھروسے کا بوجھ تھا، اور اس کا زندگی میں ایک ہی اصول تھا، جان جاتی ہے چلی جائے مگر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور پھر نام بنا کوشش کے ہی اگلے روز رمیسا نے اسے خود بتا دیا۔ وہ دھپ سے عدن کے پاس بیٹھی۔ بھائی، بندہ خوبصورت اور ڈیشنگ ہو اور مغرور نہ ہو، بھلا کیسے ممکن ہے؟ کون مغرور؟ عدن نے کتاب بند کرتے حیرت سے پوچھا۔ احمد، اور کون؟ پہلے تو سینکڑوں لوگوں میں اسے ڈھونڈا، پھر 20 فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں، اور آج موصوف کا انتہائی جارحانہ جواب آیا۔ آئندہ اتنی جرت نہ کروں کیونکہ موصوف لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اس نے منہ پھلایا۔ کون احمد؟ ارے وہی جو اس روز بک شاپ کے باہر ملا تھا۔ اوہ، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے شانے اچکائے۔ خیریت ہے زید، ہوا کیا تھا؟ احمد نے سامنے بیٹھے زید کا سرخ چہرہ دیکھتے پوچھا، اور یہ پوچھنا یوں غضب ہوا کہ کب سے ضبط کیے بیٹھا ارسل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید کو تھپڑ پڑنے کے بعد ارسل نے ہی احمد کو ارجنٹ بلایا تھا، اور اب وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہائے ظالم! ہنستے ہوئے ارسل کو زید نے تھپڑ مار کر چپ رہنے پر مجبور کیا۔ ارے مجھے کیوں مار رہے ہو ظالم؟ کسی دوسرے کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ پھر اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ بہت عزت ہوئی ہے آج آپ کے بھائی صاحب کی۔ زید نے خفگی سے منہ پھلایا۔ عزت پر کون منہ پھلاتا ہے یار؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ جبکہ ارسل نے فر اسے تمام واقعہ کہہ سنایا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں نے بہت محبت سے احمد کا چہرہ دیکھا۔ بہت عرصہ ہوا وہ یوں کھل کر ہنسنا بھول چکا تھا۔ آج اس کا بے ساختہ پن انہیں خوشی دے گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تو ارسل کو مصنوعی تعصب ہوا۔ پہلا بھائی دیکھا ہے جو اپنے ہی بھائی کی بے عزتی پر یوں خوش ہو رہا ہے۔ یار، پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی زید صاحب کی پرسنالٹی پر فدا نہیں ہوئی، اسی لیے اچھا لگ رہا ہے۔ امپریسو، کاش میں وہاں ہوتا اس وقت۔ احمد نے کہا۔ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لیتا بھائی۔ فوری جواب پر ارسل اشش کر اٹھا۔ قربان جاؤں آپ کے پیار پر۔ وہ چند لمحے سنجیدہ ہوا، پھر شرارت سے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے محترمہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ سے سوالیہ اشارہ کیا تو ارسل اور زید بے ساختہ ہنس دیے۔ عدن یار، گڈ نیوز! رمیسا نے کینٹین میں عدن کو مسرت سے جھنجھوڑا۔ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی، چہرہ جوش اور جذبات سے تمتما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو بھائی؟ یار، بات ہی پاگل کرنے والی ہے عدن۔ وہ میرے مامے کا پتر ہماری یونیورسٹی آیا ہے۔ کیا مطلب کہ اس روز وہ لڑکا، اس نے ہاتھ سے فضا میں اشارہ کیا، ملا تھا نا ہمیں، اس کا نام زید ہے اور وہ ہماری یونیورسٹی میں مائگریٹ ہو کر آیا ہے۔ تو میں کیا کروں بھائی؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کی یہاں موجودگی سے؟ بکواس نہیں۔ اچھا، ہائے ظالم، میں تو مر رہی ہوں ماموں کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ رمیسا، عدن اسے تنبیہ کرتے اٹھی۔ اوکے سوری۔ رمیسا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کینٹین سے باہر آتے ہی پہلا سامنا زید سے ہی ہوا تھا۔ ارسل نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑا سا رخ موڑ لیا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ زید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ محتاط رہنا، کیونکہ میں اپنی بے عزتی بھلاتا نہیں ہوں، اس لیے وارن کر رہا ہوں۔ ارے جاؤ، مجھے اپنی رعایا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش نہیں کریں محترم۔ عدن کون سا کم تھی؟ ریلیکس بھائی، اب آپ لوگ بچوں کی طرح شروع مت ہو جائیں۔ ارسل نے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے دوست کو ہے جو سب کو اپنی رعایا سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ میم پلیز، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔
ارسل نے زید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ بولنے دو ارسل، میں بھی تو دیکھوں محترمہ کہاں تک بول سکتی ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ اس بار لہجے میں موجود حقارت نے ارسل اور زید کے ساتھ رمیسہ کے چہرے کو بھی سرخ کر دیا۔ عدن تم ہوش میں رہ کر بات کرو، رمیسہ نے بے ساختہ ٹوکا۔ میں ہوش میں ہی ہوں اور بد دماغ مغرور لوگوں کے حواس بھی ٹھکانے لگانا جانتی ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت بول لیا آپ نے۔ زید نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ یاد رکھنا عدن، آئندہ اگر ایسے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں پھر تمہارے لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور جب میں لحاظ کرنے کی مرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تو اب اس کا غرور اسے زید کے سامنے کیسے جھکانے والا تھا، اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا تھا۔ گوٹ سہراب کے نام سے مشہور یہ گاؤں، جس کے اطراف سرسبز کھیت، آموں، کینو اور امرود کے باغات تھے، گاؤں کی مشرقی جانب چودھری حیات کی حویلی تھی، جس میں ان کے بیٹے سفیان، عارف اور فیروز رہائش پذیر تھے۔ چودھری حیات اور ان کی بیگم کا عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عارف، فیروز اور سفیان تینوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ گوٹ سہراب کے مغربی جانب چودھری بلال کی حویلی تھی، جس میں وہ اپنے 3 شادی شدہ بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ایک گاؤں میں رہنے اور ایک ہی ذات سے تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں پچھلے 23 سالوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ فیروز کے لیے چودھری بلال کی بہن کے رشتے سے انکار کی صورت میں چلنے والی مخالفت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا نام سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال بیل ریس کا مقابلہ ہوتا تھا، جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، مگر نگاہیں دونوں چودھریوں کے بیلوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ موجودہ سال ریس چودھری بلال کے بیل پہلوان کے نام رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر عارف چودھری کا 15 سالہ بیٹا سیف جاں بحق ہو گیا تھا۔ چودھری عارف نے بیٹے کی موت کے بدلے دی جانے والی رقم لینے سے انکار کر دیا کہ ان کو پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ چودھری عارف کا کہنا تھا کہ اگر میں اپنے اس دنیا سے جانے والے بیٹے کو روں گا تو رونا تو پھر بلال چودھری کو بھی پڑے گا اپنی زندہ بیٹی کے لیے۔ چودھری بلال نے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ تب چودھری عارف نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اپنی بیٹی نہیں دینی تو پھر بیٹا دو، تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لوں۔ اور پھر یہاں چودھری بلال ہار گئے کہ اس صورت بیٹی زندہ تو رہے گی، اور یوں عدن بلال کو آنن فانن بلا کر 2 کپڑوں میں سکندر سے منسوب کر کے چودھری عارف کی حویلی رخصت کر دیا گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عدن کا دماغ معاف ہو گیا۔ زید اور ارسل اسے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے تھے۔ وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اس سے نفرت تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر آتے ہی جب عدن کو تائی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا۔ عدن گر گئی۔ صفیہ تائی نے بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ سامنے کھڑا کیا۔ عابدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر لب بھینچ لیے۔ اس وقت مرد حضرات گھر میں نہیں تھے۔ بھابھی پلیز، عابدہ نے عدن کے نرم و نازک گالوں پر انگلیوں کا نشان دیکھتے انہیں روکنا چاہا۔ تم مت بولو عابدہ، یہ میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی ہے، اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھی تڑپیں گے جیسے میری ممتا تڑپتی ہے۔ انہوں نے عدن کی چوٹی کو جھٹکا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی ازلی ضد اور غصہ اونت کر آیا تو صفیہ کے ہاتھ اس نے ایک دم جھٹکے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تو دونوں خواتین اس کی جرت پر ہکا بکا رہ گئیں۔ اگر آپ نے آئندہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھیے گا، میں کوئی کمی نہیں ہوں جسے آپ ٹارچر کریں گی، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ صفیہ تائی غرائی۔ یہ تو آپ کو پھر وقت ہی بتائے گا۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ وقت کو چھوڑو، تم مجھے ابھی بتاؤ کہ کیا کر لو گی تم؟ انہوں نے اسے پھر جھنجھوڑا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر رضیہ کو پکارا جو اگلے ہی پل حاضر ہو گئی۔ جی بی بی جی، لے جاؤ اسے اور کام پر لگاؤ، اپنے ساتھ رہے گی بھی تمہارے ہی ساتھ۔
अदन भी जाने क्या सोचकर चुप हो गई। वो रज़िया के साथ, जो तकरीबन उसी की हम उम्र थी और हवेली की कुल वक्ती मुलाजमा थी क्योंकि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, वो हवेली की पिछली जानिब कमरे में रहती थी जहाँ कुआं था और अनवाओ इकसाम के पौधे थे। 5 रोज उसने बिना चूं चरा किए तमाम काम रज़िया के साथ सरअंजाम दिए। उसने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था अपनी हवेली में, और अब जब कर रही थी तो हाथों पर आबले पड़ गए। 5वें दिन 11 बजे वो अड़ियल घोड़ी की तरह ताई के सामने खड़ी थी। रज़िया का खस्ता सा सुरमई सूट पहने, उलझे बाल, बेरोनक चेहरा। मुझसे नहीं होते ये सब काम। उसके अंदाज पर आबदा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए बेसख्ता चेहरा झुका लिया। तभी फेरोज चाचू व्हील चेयर पर उतर आए। अदन उन्हें देखकर नर्वस हुई कि बहरहाल हवेली में उसका आज पहली बार सामना हुआ था किसी मर्द से। क्या बात है? उन्होंने रसानियत से पूछा। बादामी शलवार सूट में मलबूस बावकार से वो बहुत वजी इंसान थे। अलबत्ता उनकी माजूरी ने अदन को एक पल के लिए साकित कर दिया। फिर सर को नफी में जंबिश दी। पर कुछ तो है ना, अभी आप कुछ कह रही थीं। उन्होंने उससे नरमी से पूछा तो अदन ने उनकी तरफ देखा तो जाने क्यों उसे लगा वो चेहरा पहले भी कहीं देख चुकी है। इस ख्याल को झटकते उसने अपने हाथ उनके सामने फैलाए। मुझसे घर के काम नहीं होते। और ताई जान, बकवास बंद कर। मैं कोई ताई नहीं हूँ तुम्हारी, और न ही तुम्हारा कोई रिश्ता हमसे। इस घर में सब तुम्हारे लिए साहब और बीबी का दर्जा रखते हैं। आइंदा ऐसी गलती मत करना। भाभी प्लीज, फेरोज साहब ने उसकी गुलाबी नर्म हथेलियों पर आबले देखते अफसोस से कहा। तुम मत भूलो फेरोज, ये मेरी मुजरिम है, मेरे बेटे के कातिलों की बेटी, तो इसे सजा देने का हक भी मेरा है। और जब सिकंदर को कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों इस मामले में बोल रहे हो? फेरोज चाचू हैरान रह गए और बेसाख्ता पलटे, मगर सिकंदर का नाम सुनते अदन झटके से पलटकर दहलीज फलांग गई। अदन का जिद्दीपन ऊद कर आया। वो धप से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी। क्यों? जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो क्यों सजा को भुगतूं? मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती हैं ये बड़ी बीबी। वो झटके से उठकर किचन में आई जहाँ रज़िया बर्तन धो रही थी। ठंडे पानी का ग्लास पीते हुए उसने रज़िया को पुकारा। मौजूदा हैसियत के बावजूद उसके लहजे और अंदाज में मालिकाना इस्तेहकाक था। रज़िया फौरन मतवज्जा हुई। जी बीबी, वो तुम्हारे साहब कहाँ होते हैं? न जाने वो सिकंदर का नाम लेते हुए क्यों झिझक गई थी। कौन से साहब बीबी जी? इससे कबल के वो कुछ बताती सफिया ने उसे पुकार लिया। अदन ने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते हुए घुटनों पर चेहरा टिकाए थकान से पलकें मूंदी तो छम से एक दिलकश चेहरा निगाहों के सामने आ गया। उसने घबरा कर आंखें खोली। तभी रज़िया वापस आ गई। तोबा, अहमद साहब के गुस्से से तो अल्लाह ही बचाए। कौन अहमद? अदन झटके से उठी। छोटे साहब और कौन? वो निरूठेपन से बोली। जितने अच्छे हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। अच्छा ठीक है रज़िया, मैं आज कुछ नहीं करूंगी। ठीक है बीबी, मैं कर लूंगी। तुम्हारे पास कपड़े होंगे रज़िया? दरअसल मुझे शावर लेना है। हाँ जी बिल्कुल हैं, बल्कि ट्रंक में पड़े हैं नए कपड़े। पिछले दिनों ही अहमद साहब ने मुझे दिलाए थे। मैंने नहीं पहने, आप पहन लें। पर तुमने क्यों नहीं पहने थे? कीमती है ना जी, इसलिए। कीमती लिबास तो मालकों के लिए होते हैं ना। ऐसे नहीं कहते रज़िया, तुम्हें साहब ने दिलाए थे तो तुमको पहनने चाहिए थे ना। वो कितने प्यार से लाए होंगे तुम्हारे लिए। अदन ने नरमी से समझाया तो वो मुस्कुराती। आप भी बिल्कुल साहब जैसी बातें करती हैं बीबी। मालिक हैं जी आप लोग। अरे रज़िया, अगर तुम गौर करो तो मैं मालिक नहीं मुलाजमा ही हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ, नीचे सोती हूँ, तुम्हारे ही कपड़े पहन रही हूँ, तो फिर मालिक कैसे हुई मैं? ये तो जी अभी बीबी साहिबा को गुस्सा है ना, इसलिए। बेटे की मौत को कितना ही अरसा गुजरा है, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए ऐसा करती हैं। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तो आप मालिकन बन जाएंगी। रज़िया पुरयकीन थी। वो थके थके कदमों से क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। दोबारा फिर वो हवेली नहीं गई। शाम ढले उसने खिड़की खोली जहां से हवेली का पिछला सहन साफ नजर आता था। सरसब्ज लॉन, कुआं और फूलों की बहुतात थी। आज वो शख्स जाने क्यों भुलाए नहीं भूल रहा था, जिसे पहली नजर में देखते ही उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। बार बार उसका चेहरा निगाहों के सामने आ रहा था, जिसे वो बार बार झटक रही थी। उसने थक कर खिड़की में नस्ब सलाखों पर पेशानी टिकाई। चंद लम्हों बाद किसी अजीब एहसास के तहत निगाह उठाई तो शॉक्ड रह गई। सुरमई कॉटन के शलवार सूट में मलबूस वो शख्स उसे अपना वहम ही तो लगा था।
बार बार पलकें झपकने के बावजूद भी वो निगाहों के सामने जूं का त्यों मौजूद रहा तो उसने बेसाख्ता दोनों हाथ सख्ती से लबों पर जमा लिए। वो वाकई अहमद ही था। फूलों के झुंड के पास कान में हैंड फ्री फंसाए वो कुछ सुन रहा था या किसी से बात कर रहा था। तभी उसने रजिया को उसकी तरफ जाते देखा। न जाने वो क्या बात कर रहे थे। फिर वो पलटकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अदन तेजी से हवेली की तरफ गई। निहायत दिलजमई से बिना कोई गलती किए रजिया के साथ कामों में हाथ बटाया। लबों पर धीमी सी मुस्कान खेलती रही। हवेली में तुझे सिर्फ दोनों बेगम साहिबा ही होती हैं। बड़े साहब यानी चौधरी आरिफ वो अपने कामों पर ही होते हैं। सरपंच है ना अपने गांव और इर्द गिर्द के 12 गांव के, तो इसीलिए घर बहुत कम आते हैं। सिकंदर साहब भी उन्हीं के साथ मसरूफ होते हैं, जबकि छोटे साहब शहर में रहते हैं। रजिया मुसलसल बोलते उसे आगाह करती रही। आज अदन को उसका बिला वजह बोलना बुरा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप उसकी बताई तफसील सुनती रही। खाने की मेज पर उसने सफिया ताई से अपनी सुबह वाली बदतमीजी पर माजरत की और अपनी मौजूदा हैसियत बतौर मुलाजमा कबूल कर ली। सिर्फ एक शख्स की मौजूदगी ने उसके बाग़ियाना अंदाज और अक्खड़पन को हरा दिया था। अहमद इस हवेली का मकीन था। अदन उससे जुड़े रिश्तों के दरमियान मौजूद थी। वो शख्स इसी हवेली में पला बढ़ा था। ये उसकी खुशनसीबी नहीं तो और क्या है कि वो अब उसकी निगाहों के सामने होगा। रात जब वो रजिया के पास सोने के लिए लेटी तो आंखें बंद करते ही छम से वो निगाहों के सामने आ गया। रजिया, जी बीबी, ये जो अहमद साहब हैं क्या करते हैं? उसने करवट बदल कर रजिया को देखा, जिसने बेयकीनी सी अदन को देखा था। क्या करते हैं मतलब बीबी साहिबा? शाम को बताया तो था। वो हैरान और बेयकीन थी। उसकी इतनी लंबी तकरीर का शायद एक लफ्ज भी अदन ने नहीं सुना था। तो दोबारा बता दो ना यार, वो क्या करते हैं? अदन को कदरे शर्मिंदगी महसूस हुई। शहर में होते हैं जी, पढ़ाते हैं वहाँ उन बच्चों को जो बोल और सुन नहीं सकते। स्पेशल बच्चों को? वाह, उनके एक और भाई भी हैं। रजिया ने फिर से उसे आगाह करना चाहा। अरकम नाम है उनका, अपनी माँ के पास हैं, थोड़े दिनों तक आ जाएंगे। अदन हैरान हुई। हवेली में कितने लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। अरकम और माँ के पास क्या मतलब तुम्हारा रजिया? वो अरकम साहब फेरोज साहब के बेटे हैं ना। जब उनकी टांगे कटी थी ना तब उनकी बीवी ने तलाक ले ली थी। शहरी कुड़ी थी जी। अब अरकम साहब हर हफ्ते माँ से मिलने जाते हैं। इस बार कुछ ज्यादा अरसा ही रह गए थे। उसकी उम्र कितनी है रजिया? 12 या 13 साल के होंगे। तो अहमद साहब खाने के वक्त क्यों नहीं आए थे? वो तो जी शाम को ही चले गए थे, किसी काम से आए थे वो। ओह, उसे मायूसी हुई। फिर कुछ याद आने पर रजिया की तरफ देखा। साहब तुम्हें इशारे से क्या दिखा रहे थे? इस बार रजिया झटके से उठ बैठी थी। उसने हैरत से अदन की तरफ देखा था। दिखा नहीं रहे थे बीबी, बता रहे थे कि वो डेरे से होते हुए शहर चले जाएंगे। बीबी साहिबा को बता दूं, मगर वो बोल तो नहीं रहे थे। मैंने देखा था, उनके लब खामोश थे। अरे बीबी, आपको नहीं पता? क्या नहीं पता रजिया? यही कि अहमद साहब बोल नहीं सकते। ये क्या कह रही हो? उसने तेजी से नम होती आंखों को पोंछा। हाँ जी, वो बोल नहीं सकते, इशारों से बात करते हैं, और जो इशारे नहीं समझते उन्हें लिखकर बता देते हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है उनकी बात जी। रजिया फख्र से बता रही थी। अदन ने लेटकर उसकी तरफ से करवट बदल ली कि तेजी से बहते अश्क उसके दिल की कैफियत अयां कर रहे थे। रजिया चौंकी। क्या हुआ बीबी? मुझे नींद आ रही है रजिया। करलाता सा लहजा था। रजिया साकित रह गई। आप रो रही हैं बीबी? उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। यह हकीकत उसके दिल पर कयामत बनकर टूटी थी। अजीब न था कि दिल शिद्दत गम से फट जाता। जब्त की इंतहा को छूते वो झटके से उठकर रजिया के गले लगकर बिलक उठी। रजिया साकित रह गई। वो लड़की थी और उसका गम लम्हे में समझ गई। वो जो सुबह हवेली से निकली थी, जिद और गुस्से से बड़ी बेगम साहिबा को बिना डरे सुना आई थी, क्यों सरे शाम चहकती हुई वापस आई थी? उसका चेहरा रोशन क्यों था? वो अहमद नाम को इतनी मोहब्बत से क्यों पुकार रही थी? और अब वो उसके गोयाई से महरूमी का सुनकर यूं फूट फूट कर रो रही थी, गोया अभी किसी अजीज की मौत हुई हो। रजिया ने नरमी से उसके गिर्द हिसार खींचा। सीरियसली? अहमद ने हैरत और बेयकीनी से अरसल और जैद की तरफ देखा। बिल्कुल। अरसल ने हल्फिया अंदाज में हाथ उठाए।
उफ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बचपन का साथ था, वो उसके तमाम इशारे बखूबी समझ जाते थे। आई जस्ट लव हर। उसने मसनूई आ भरते हाथ पीछे बांधते कुर्सी की पुष्ट से कमर टिकाई। क्या कह रहे हैं अहमद भाई? अरसल ने बेयकीनी से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, काश वो लड़की मेरे सामने आ जाए। इस बार वो संजीदा हुआ तो दोनों चौंक गए। अब वो इशारों के बजाय चंद जुमले लिखकर उनके सामने कर चुका था। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो अपनी भाई की बेइज्जती के बदले में लम्हा जाया किए बिना उसे शूट कर दूंगा। दोनों ने बेयकीनी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। रिलैक्स भाई, ये अरसल ना मजाक कर रहा था आपसे। भला कोई लड़की इतनी जुर्रत कर सकती है कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के की इंसल्ट करे? तो मुझे बहला नहीं सकते जैद। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारी यूनी में, देखूं तो सही वो मोहतरमा है कौन। अहमद का अंदाज दो टोक था। जैद और अरसल के पसीने छूट गए, मगर वो कल कभी नहीं आई थी। गुजरे 3 माह में उनकी जिंदगियां इस हद तक बदल चुकी थी कि वो भूल चुका था उसने कभी किसी लड़की के लिए कुछ कहा भी था। उन दिनों हवेली में खासी चहल पहल थी कि जैद और अरसल गांव आए हुए थे और वो जैद के ज़र्फ पर हैरान थी। उसके इतने इंसल्टिंग रवैये के बावजूद वो ना सिर्फ उसे माफ कर चुका था बल्कि उसकी खातिर अपने भाई सिकंदर के सामने भी खड़ा हुआ था। इस हवेली में जैद और फेरोज चाचू ऐसे वजूद थे जिनकी वो दिल से बहुत इज्जत करती थी। 3 माह कबल वाली अदन बिलाल, जिसका वक़ार और शाहाना अंदाज शहजादियों सा था, अब उसकी हालत किसी भिकारन से कम ना थी। जिसका कासा फकत एक निगाहे उल्फत का प्यासा था और वो था कि उसकी तरफ देखता ही ना था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो रोज अल्लाह से ये सवाल करती थी, या अल्लाह मेरी आजमाइश ख़त्म कर दे, अहमद को मेरे दिल से निकाल दे। मैं सिकंदर की मनकूहा हूँ, मेरा दिल बदल दे, तू कादिर है, तू कर सकता है। हर रात सोने से कबल वो यही दुआ मांगती और हर सुबह उसकी इब्तदा एक ही दुआ से होती, या अल्लाह आज वो शख्स हवेली आ जाए। उस मगरूर लड़की को मोहब्बत ने इस हद तक बदल डाला था कि उसकी ज़ात कहीं गुम होकर रह गई थी। अब सिर्फ एक हकीकत थी कि वो अहमद के प्यारे रिश्तों की मर्जी के मुताबिक मोम की मानिद उनकी मंशा के पेशे नज़र ढलती जा रही थी। वो ये तक फरामोश कर चुकी थी कि उसका सिकंदर नामी किसी शख्स से कोई ताल्लुक भी है। गए दिनों की अजीज बातें, निगार सुबहें, गुलाब रातें, बसाते दिल भी अजीब शय है, 1000 जीतें 1000 मातें, जुदाइयों की हवाएं लम्हों की खुश्क मिट्टी उड़ा रही हैं। गई रुतों का मलाल कब तक, चलो के शाखें टूटती हैं, चलो के कब्रों पर खून रोने से अपनी ही आंखें फूटती हैं। सुबह जब वो किसी काम से हवेली की पिछली तरफ आई तो कदम ठिठक कर साकित हो गए। सुबह की पुरनूर सातों में उस शख्स को देखना किस कदर दिलफरेब था। टांगे कुएं में लटकाए वो मुंडेर पर बैठा था, कान में ब्लूटूथ था, असल में वो उसका आला समात था। वो न जाने कब तक उसकी पुश्त पर निगाहें जमाए खड़ी रहती। जब उसने अचानक उसकी तरफ देखा तो वो चौंक कर उसकी तरफ बढ़ी। अहमद ने बगौर उसे देखा। सुर्ख और मेहंदी रंग की लॉन्ग शर्ट जिसकी आस्तीनें शिफॉन की थीं और दुपट्टा भी। ये सूट असल में वही लाया था। अस्सलाम वालेकुम साहब, सर के इशारे से जवाब दिया क्या। फिर वो मुंडेर से उतरकर उसके रूबरू खड़ा हुआ। आप नाश्ते में क्या लेंगे? अहमद ने बगौर उसका अंदाज देखा तो कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। वो क्यों उसके सामने बेखुद हो जाती है कि नज़र उठाती है तो पलक झपकाना भूल जाती है और जब हवास में लौट कर निगाह झुकाती है तो उठाना भूल जाती है। कहीं जो वो समझ रहा है वो हकीकत तो नहीं। अदन ने निगाह उठाई, फिर फौरन झुका ली कि वो उसकी तरफ मतवज्जा था। आप बता दें क्या लेंगे नाश्ते में? वो रूहानसी हुई। घर में सबकी पसंद उसे मालूम थी सवाए उस शख्स के। उसने गहरी सांस लेते सर को नफी में जंबिश दी और कदम हवेली की तरफ बढ़ाए। साहब प्लीज बताएं ना, क्या पसंद है आपको खाने में? वो भागकर उसके पीछे लपकी। वो एकदम पलटा तो अदन से टकराते टकराते बचा। झुंझुलाकर उस बेवकूफ लड़की को देखा। क्या मसला है? कुछ नहीं खाना मुझे। तेजी से मोबाइल पर टाइप करते उसने अदन के सामने किया। आप मुझे इशारे से भी बता सकते हैं साहब, लिखना जरूरी नहीं, मैं समझ लूंगी आपकी बात। न जाने अदन ने किस जाम में कहा। वाकई इस्तेहज़ाइया अबरू उठाते गोया अदन को चैलेंज किया। आपको यकीन नहीं है मेरी बात का साहब?
वो फिर जोश में आई। ठीक है, आप कुछ कहें, फिर मैं बताती हूँ आपने क्या कहा। अहमद सीने पर बाजू लपेटे पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो उसकी पलकें झपक गईं। उसने बगौर उन सुर्ख होते आरज और लरसती पलकों को देखा। मेरी तरफ देखो, यूं सर झुकाकर तुम क्या समझ सकोगी कि मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझने के लिए मेरी तरफ देखना जरूरी है। फिर उसने तेजी से मोबाइल में टाइप करते अदन के सामने किया तो फिर उसने निगाह उठाई। उफ, इस चेहरे की तरफ देखना किसी इम्तिहान से कम थोड़ा ही था उसके लिए। उसने उंगली से अपने सीने की तरफ इशारा किया, फिर उसके 2 रंगों के दिलकश दुपट्टे की तरफ, उंगली अंगूठे की मदद से नोट गिनने का साइन, फिर दाएं हाथ से अपने चेहरे को फोकस करते शहादत की उंगली और अंगूठे को राउंड किया। यानी मतलब ये था, तुमने मेरा दिलाया सूट पहन रखा है और तुम अच्छी लग रही हो। पिछली तरफ से आती रजिया ने उस मंजर को दिलचस्पी से देखा। वो आबदा के कहने पर उसे बुलाने आई थी। मालूम नहीं था कि अदन इस वक्त यहाँ पर होगी। ओह, मैं समझ गई, मेरा दुपट्टा अच्छा है ना? अदन का चेहरा तमतमाया, मगर वो तासुफ से सर झटकता आगे बढ़ गया, जबकि रजिया हंस पड़ी। वो बखूबी समझ चुकी थी कि कहने वाला क्या कह गया है अदन से। अदन ने उसे घूरा। आ जाएं बीबी, सब लोग नाश्ते के लिए बैठ गए हैं। अदन को शुबा हुआ कि रजिया की समझ में अहमद की बात आ गई है। उसने रजिया से पूछा, मगर रजिया टाल गई। 23 बरस बाद सफीना फूफो अपनी 2 बेटियों और शोहर के हमरा हवेली आई थी। इतने बरसों बाद आरिफ साहब का गुस्सा भी खत्म हो ही गया था अपनी बहन के लिए, जबकि अदन रुमैसा को देखकर हैरान थी। कानों में एक जुमला मतवातर गूंज रहा था, जैद मेरे मामू का बेटा है। गोया रुमैसा सच कहती थी, जबकि अदन उसे फिर भी मजाक ही समझ रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती अदन, मैं तुम्हें देखकर किस कदर एक्साइटेड हूँ। रुमैसा अदन के दोनों हाथ थामे नॉन स्टॉप बोल रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए रुमैसा की बेसरोपा बातों को सुन रही थी। पहली बार अपने मामू और कजन से मिलकर बहुत खुश हो रही हूँ, जिन्हें सिर्फ मैंने तस्वीरों में देखा था। रुमैसा की आंखें नम थीं। ये सब सिकंदर भाई की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मामू को मनाया। अदन, तुम बहुत लकी हो, चाहे जैसे हालात ही सही, मगर तुम सिकंदर भाई की बीवी हो। अगर मेरी जिंदगी में किसी और के लिए गुंजाइश होती ना, तो मैं सिकंदर को तुमसे छीन लेती। अदन, जो हैरत से उसकी खुशी देख रही थी, आखिरी बात पर चौंकी। किसी और की गुंजाइश? मतलब तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? सॉरी, मैं बताने वाली थी, मगर वो हादसा हो गया यार। तुम ठीक तो हो ना अदन? उसने अदन की कमलाई रंगत और फीका सा चेहरा देखते तशवीश से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। और यहाँ खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम बहुत बदल गई हो अदन। वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं रुमैसा, और जो ना बदले ना, किस्मत उन्हें बेरहमी से बदल देती है। अदन ने यासीद से कहा। 2 ही जज्बे इंसान को बदलने पर कादिर होते हैं अदन, नफरत या मोहब्बत। अब तुम बताओ, मौजूदा हालात के पेश नज़र तुम नफरत से बदली हो या मोहब्बत से? अदन उसके अंदाजे पर हक्का बक्का रह गई, मगर इससे कबल के वो कुछ बोलती, अरसल ने रुमैसा को पुकार लिया। वो अगले हफ्ते आने का वादा करके उठी थी। उन दिनों हालात ने एकदम से गोया पलटा खाया था, क्योंकि नामेहरबान चेहरे जिनमें सरे फहरिस्त आई थीं, अदन पर मेहरबान नजर आ रही थीं, और वो जो हमेशा उसके लिए आसानियां ढूंढते थे लाताल्लुक नजर आ रहे थे, जिनमें जैद, अरसल और फेरोज चाचू शामिल थे। उन्हें अपने हर काम के लिए अदन की जरूरत होती। अगर वो खाना बनाती तो कई नुक्स निकालते, अगर किसी काम में मामूली सी देर हो जाती तो बिला झिझक झिड़क भी देते। ताई और आबदा हैरत से उनके बदले हुए अंदाज नोट कर रही थीं। आखिर क्या हो गया था उन तीनों को जो यूं अचानक बदल गए थे? उस रोज सुबह पराठे बनाते अदन के हाथ की पुश्त और हथेली पर गरम तेल गिरने से आबले पड़ गए थे। तकलीफ की शिद्दत से आंखें लबालब भरी हुई थीं। आबदा ने उसके हाथ पर दवाई लगाकर उसे काम ना करने का कहा था। छुट्टी का दिन था, सवाए ताया और सिकंदर के सभी मर्द घर पर थे। जैद और अरसल को कहीं जाना था, इसीलिए अदन को बुलाया। हमारे कपड़े प्रेस कर दो, अंदाज हाकमाना था। अहमद के अलावा आबदा भी लाउंज में ही मौजूद थी। रजिया से कहो, वो कर देगी। देख नहीं रहे इसका हाथ कितना जल गया है? इस्त्री कैसे पकड़ेगी ये? आबदा ने दोनों को घूरा, जबकि अदन सर झुकाए खड़ी थी। दिल की हालत बहुत काबिले रहम थी।
अहमद ने उसका सुर्ख चेहरा देखने के बाद हाथ को देखा जो अच्छा खासा जल गया था। अम्मा जैद से कहते बाहर निकल गईं तो जैद ने अदन को घूरा जो पलटने वाली थी। सुनो मैडम। जैद के इस अंदाज पर अहमद हैरान रह गया। ये तो तय है कि मेरे कपड़े तुम ही प्रेस करोगी। वो उठकर उसके मुकाबिल आया तो लबालब भरी आंखों को देखकर एक पल के लिए बेचैन हुआ, मगर फिर सर झटका। एक हाथ जला है ना तुम्हारा, वो भी मामूली सा, दूसरा तो सलामत है ना। अब जाओ यहाँ से, कपड़े इस्त्री करो। अहमद झटके से उठकर उनके करीब आया। अरसल मजे से सोफे पर फैल कर बैठ गया, गोया अभी किसी मनपसंद ड्रामे का पसंदीदा सीन देखने जा रहा हो। तुमने सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? रजिया कर देगी कपड़े प्रेस। सफेद शलवार सूट में मलबूस अहमद पूरे कद से अदन के पहलू में खड़ा भाई से मुखातिब था, जबकि अदन तो गोया मरने वाली थी। क्यों, ये क्यों नहीं कर सकती? जैद झुंझुलाया। मुझे इसी से करवाने हैं। जैद, अगर जो वो बोल सकता तो पूरी हवेली उसकी गरज से लरज उठती। आइंदा मैं नहीं देखूं कि तुम अपने फजूल कामों के लिए अदन को पुकार रहे हो। रजिया से कहो और तुम जाओ यहाँ से। अहमद ने हाथ के इशारे से अदन को वहां से हटाया तो वो तेजी से पलटी। वाह साहब, क्या आपके काम नहीं करती वो? अरसल को एकदम गुस्सा आया। या आपको 7 खून माफ हैं भाई? मुझे खुद से कंपेयर मत करो अरसल, और आइंदा अगर इसे तंग किया तो याद रखना बुरी तरह पेश आऊंगा, अहमद ने सख्ती से कहा। या हैरत, ये मेरी गुनहगार बसारतें क्या देख रही हैं कि अदन बिलाल के लिए इस घर के शहजादों को डांटा जा रहा है। जैद और अरसल पर गशी तारी हुई तो वो पलटा, मगर अपने पीछे जिन्नाती कह के सुनकर खुद भी मुस्कुरा दिया, जबकि हॉल की दीवार से टेक लगाए अदन की निगाहें दूर जाते उस शख्स की पुश्त पर जमी थीं। तेरी कोशिश तेरी तदबीर होना चाहता हूँ, मैं तेरे हाथों की तहरीर होना चाहता हूँ। तू मेरे पास आए और पलट कर ना जाए, मैं तेरे पाँव की जंजीर होना चाहता हूँ। मैं इसीलिए खुद को तबाह कर रहा हूँ कि तेरे हाथ से तामीर होना चाहता हूँ। रात अरकम की वापसी हुई थी और सुबह अदन से मुलाकात। वो हवेली का पहला फर्द था जिसने उसे उसके रिश्ते से भाभी कहकर पुकारा था। वो 13 साला सेहतमंद खूबरू बच्चा था जिसे अदन बहुत पसंद आई थी। वो सुबह से उसके साथ साथ था। इस वक्त जब वो लोग शाम के खाने के लिए किचन में थीं, अरकम मार्बल पर बैठा पास्ता खा रहा था, साथ ही मुसलसल बोल रहा था। आप मज़े की कुकिंग करती हैं भाभी, जबकि रजिया आपा को तो कुछ भी नहीं बनाना आता। उसने मुंह बनाया तो दोनों मुस्कुरा दी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि बड़ी बहन हो, और देखें अब आप आ गई हैं ना। अदन हंस पड़ी, फिर उसका सुर्ख चेहरा प्यार से देखा। तुम इतने माँ शहर रहकर आए हो, यहाँ किसी को मिस नहीं किया क्या? उसने अरकम के सिल्की बाल बिगाड़े। बहुत मिस किया सबको, दिल चाहता था फौरन आ जाऊं, लेकिन फिर भाई का चैलेंज याद आ जाता था। वो कहते थे मैं इतना अरसा वहां नहीं रह पाऊंगा, बस इसीलिए। उसने बात के इख्तिताम पर प्याला उठा लिया। कौन से भाई ने चैलेंज किया था तुम्हें? हाँ, वो अहमद साहब ने। अरकम से कबल रजिया बोल पड़ी। बर्नर जलाते अदन के हाथ थमे। रजिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, छोटे साहब सब भाइयों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं ना, आपने देखा है ना। रजिया ने सब्जी काटते हाथ रोककर अदन की तरफ देखा जो बगौर उसका एक एक लफ्ज सुन रही थी। खुद भी इतने बड़े नहीं हैं मगर। तभी अरकम भाई पुकारते तेजी से बाहर को लपका। दोनों ने देखा वो अहमद की पुश्त से लिपटा कह रहा था, टेस्ट करें, बहुत मजे की हैं, भाभी ने बनाई हैं। वो उसे किचन में ले आया और चमचा भरकर अहमद की तरफ बढ़ाया। लुकमा लेते उसने सर हिलाते तारीफ की, फिर रजिया की तरफ देखा। पहले हाथ से फिजा में जिगजैग किया, फिर मूंछों को ताव देते अपने पीछे इशारा किया। अदन ने उसके इशारे देखे। जब वो दोनों भाई बाहर निकले तो उसने कब से रुकी सांस बहाल करते रजिया से पूछा, वो क्या कह रहे थे रजिया? कह रहे थे जैद साहब सो रहे हैं, जब उठें तो उनसे कहूँ डेरे पर आ जाएं, वो लोग वहीं जा रहे हैं। उसने यूं फरफर बताया गोया वो बोल कर गया हो। अदन को रजिया पर रश्क आया। साहब वो बीबी। वो लोग शाम की चाय पी रहे थे जब हवास बाख्ता रजिया उनके सामने आ खड़ी हुई। क्या हुआ रजिया? आबदा ने हैरत से उसका जर्द चेहरा देखा। बीबी जी, वो छोटी बीबी कुएं में गिर गई हैं। अभी उसकी अल्फाज मुंह में ही थे कि जैद, अरसल और अहमद झटके से कुर्सियां धकेलते बाहर दौड़े, जबकि बाकी लोग उनके पीछे थे। कुएं में कूदने वाला अहमद था।
वो गोता लगाते उसे सतह पर खींच लाया। वो बेहोश थी, पानी उसके शानों तक था। उसने बेताबी से अदन का चेहरा थपथपाया। बाकी लोग मुंडेर पर झुके थे। जैद और अरसर सीढ़ी ले आए। सफिया के कहने पर रजिया अंदर से चादर ले आई। उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि बाकी लोग भी परेशान थे। अहमद दाएं बाजू के हिसार में अदन के बेजान वजूद को कंधे से लगाए बाहर आया तो आबदा ने चादर उस पर डाल दी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसकी हालत कदरे बेहतर थी। सफिया अदन के चेहरे पर नजरें जमाई बैठी थी। पपड़ी ज़दा होंठ, कमलाया हुआ चेहरा, वो कितना बदल गई थी। जब यहाँ आई थी तो कैसा दिल मोह लेने वाला दिलकश चेहरा था, और अब उन्हें बहुत दुख हुआ। हकीकत ये थी कि इस हवेली का कोई भी मकीन सख्त दिल नहीं था। बस एक हादसे ने वक्ती तौर पर उनके दिल सख्त कर दिए थे, जो रफ्ता रफ्ता उस खोल से बाहर आ रहे थे। यही वजह थी कि ताई का रवैया उसके साथ बेहतर हो रहा था। क्यों गई थी ये वहां, किसके कहने पर? आबदा ने रजिया को डांटा। जब सबको मालूम है इसे पानी से डर लगता है तो उसे वहां भेजने का क्या मतलब है? जान लेनी थी क्या इसकी? उन्हें रह रह कर गुस्सा आ रहा था। किसी ने नहीं कहा था जी। रजिया ने सर उठाया। बीबी खुद गई थी। अंदर आते अहमद ने उसका जवाब ध्यान से सुनकर माँ का चेहरा देखा। मगर क्यों? उन्हें हैरत हुई। रजिया ने आने वाले को देखा। मैंने मना किया था कि बीबी यहाँ ना बैठें। अगर तुम रोकती तो वो रुक जाती ना। बहाने मत बनाओ और सच्चाई बताओ। अम्मा को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा वो सफिया का नाम लेने से हिचकिचा रही है। रजिया रूहानसी हुई। मैं सच कह रही हूँ बीबी। उस रोज सिकंदर साहब वहां बैठे थे ना कुएं पर, पैर लटकाए, तो बीबी ने मुझे कहा कि मुझे भी अब कुएं से डर नहीं लगता, मगर वो फिर भी गिर गईं। अहमद तेजी से बाहर निकल गया, जबकि दोनों खवातीन हक्का बक्का रह गईं। उनकी रूटीन थी, जब वो भाई फारिग होते तो हवेली की पिछली तरफ कुर्सियां बिछाकर कार्ड्स खेलते। उस रोज भी वो खेल रहे थे जब उन्हें देखते अरकम को एकदम ख्याल आया। साइम की भाभी बेबी लेकर आई हैं। हमारा बेबी कब आएगा भाई? उसने जिस कदर इश्तियाक से पूछा था, सभी लड़कों को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। अरकम, ऐसी बातें नहीं करते यार। अहमद ने उसका गाल छुआ तो वो ओके कहता उठकर हवेली चला आया और सीधा किचन में आया, जहां अदन आटा गूंद रही थी। रजिया ताई के पास थी। अरकम के पीछे वो भी किचन में आई थी। भाभी, वो जंप लगाकर मार्बल टॉप पर बैठ गया। जी अरकम, कुछ कहना है आपको? आटा ढककर हाथ धोते मसरूफ से अंदाज में उसने पूछा। हमारे यहाँ बेबी कब आएगा? हमारा बेबी? अदन के हाथ साकित हुए। पलटकर हैरत से अरकम का पुरजोश चेहरा देखा। क्या मतलब? उसे अरकम की बात समझ में नहीं आई थी। वो किसके बेबी का जिक्र कर रहा है? साइम की भाभी लाई हैं बेबी हॉस्पिटल से। तो भाभी आप कब लाएंगी? अदन ने एकदम से उसकी तरफ से रुख मोड़ा और रजिया मुस्कुरा दी। अरकम, नूडल्स बना दूं बेटा? चंद लम्हों बाद उसने बात को पलट दिया। जी बना दें, मैं बड़ी अम्मा के पास हूँ, वहीं लेकर आइएगा। वो कहते हुए बाहर निकल गया तो अदन ने गहरी सांस ली। रजिया खिलखिलाकर हंसी तो वो खुद भी मुस्कुरा दी। उन दिनों अदन की जिंदगी दोहरी अजियत में थी। जब रुमैसा की हवेली में आमद हुई, वो अदन के कुएं में गिरने के बाद उसकी खैरियत मालूम करने आई थी। उसे रजिया ने बताया कुएं से उसे सिकंदर ने निकाला था। वो हवेली में ही थे, जबकि उसे याद तो नहीं पड़ता था कि उसने किसी नए चेहरे को देखा हो, क्योंकि जब से अदन इस हवेली में आई थी उसने सिकंदर को देखा तक नहीं था, और शायद ऐसा सिकंदर उसे सजा देने के लिए कर रहा था। बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे बहुत डांटा था जी। रजिया बारहा उसे तफसील बता चुकी थी। वो गायब दिमागी से रुमैसा को सुन रही थी। मैंने उस रोज जैद को पहचान लिया था, तस्वीरें देख रखी थी मैंने। फिर अहमद मिल गए, पर मैं अहमद के पीछे नहीं थी यार, वो कोई और था। कौन था वो? वो जैद है। तुम जैद को पहले से जानती थी? अदन ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। रूबरू नहीं मिली थी, सिकंदर के साथ देखा था, फिर उनसे मिलना भी था कि वो मामू को मनाएं, क्योंकि मामू उनकी बात नहीं टालते। सिकंदर तुम्हें कहाँ मिले? उसने बेचैनी से पूछा तो रुमैसा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अभी बताया तो है, बल्कि पहले भी बताया था कि पिछले 4 माह से अहमद बाकायदगी से हमारे यहाँ आते रहे हैं। पहले तुमने सिकंदर कहा, अब तुम अहमद कह रही हो। अदन तो रो देने को थी। ये इंकशाफ जानलेवा था कि क्या अहमद ही दरअसल सिकंदर है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही अदन। रुमैसा ने तशवीश से उसका जर्द चेहरा देखते हाथ थामे।
अदन ने आंखों में नमी लिए बेबसी से उसे मुखातिब किया। अरे मुझे बताओ ना रुमैसा, अहमद और सिकंदर कौन है? क्या हो गया है यार तुम्हें? तुम अपने शोहर को नहीं जानती? रुमैसा ने उसे डांटा। रुमैसा जी, बीबी इस हकीकत से नावाकिफ हैं। रजिया ने वहां आके उन पर पहाड़ गिराया। दोनों ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। छोटे साहब ने मना किया था कि बीबी को पता ना चले। वो दरअसल सिकंदर ही हैं। सिकंदर अहमद। कोई उन्हें सिकंदर कहकर मुखातिब करता है तो कोई अहमद। वो बहुत गुस्सा थे जी भाई के कत्ल पर। भाई की मौत के बदले उनसे निकाह करके आपको इस हवेली में तो ले आया गया, लेकिन वो आपको सजा देने के लिए आपसे दूर रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबको मना कर दिया था कि कोई भी उनको सिकंदर कह कर ना पुकारे, सब उनको अहमद ही कहें। अदन की आंख से आंसुओं का रेला बह निकला, जबकि रुमैसा भी हैरान थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? जब अदन रो रो कर निढाल हो गई तो रुमैसा खुद भी रोने वाली हो गई, और यही हाल रजिया का भी था। अदन प्लीज चुप हो जाओ। रुमैसा ने उसके हाथ थामे। मैं जानती हूँ तुम्हें जानकर बहुत दुख हुआ है, मगर तुम रो मत, बदला लो उससे। उसे मालूम ही ना हो कि तुम हकीकत जान गई हो। वो उसे चुप करवाने के जतन कर रही थी। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ रुमैसा? क्यों नहीं कर सकती? अगर वो हकीकत छुपा कर तुम्हें अजियत दे सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्योंकि मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? रुमैसा चौंकी, जबकि रजिया मुस्कुराती। तुमने पूछा था ना मुझे किस जज्बे ने इतना बदला? हकीकत से नाशनाई के बावजूद मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचता था। तुम जानती हो ना रुमैसा, मैं कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बईद ना था कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाती अगर जो उस शाम मैंने अहमद को ना देखा होता। उसकी दी कोई सज़ा मेरे लिए एजाज से कम नहीं। वो मेरी निगाहों के सामने था तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझती थी, और अब जबकि मैं हकीकत जान गई हूँ कि अहमद ही मेरा बख्त है तो कैसे लाताल्लुक हो जाऊं। याद है जब हम दोनों ने उस रोज़ अहमद को देखा था, मैं तो पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठी थी। वो इतने प्यारे क्यों है रुमैसा? अरे बेशरम लड़की, रुमैसा ने मसनूई खफगी से कहते हुए उसे चपत लगाई। किस कदर बेशर्मी से ननद के सामने दास्ताने मोहब्बत सुना रही हो। ननद को ना सुनाऊं तो किसे सुनाऊं यार? वो रूहान सी हुई। उफ, ये रजिया की बच्ची भी इस राज से वाकिफ हो गई है। उसे मुस्कुराते देखकर रुमैसा चिल्लाई। मुझे भी ननद ही समझ लें, क्योंकि साहब बिल्कुल बहनों की तरह ख्याल रखते हैं मेरा। और ये राज जो आपको अभी मालूम हुआ है ना, मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ। और आपको पता है, अभी भी जैद साहब अहमद साहब यानी सिकंदर साहब को बता रहे थे कि ये वही लड़की है जिसके बारे में आपने सुनकर कहा था, आई जस्ट लव हर। रजिया ने आंखें मटकाईं, जबकि अदन ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। रुमैसा चिल्लाई, तुम्हारा मतलब सिकंदर अहमद अदन बिलाल से मोहब्बत करता था? माय गुडनेस, ये क्या मिस्ट्री है भाई? उसने अदन की तरफ देखा, मगर वो तो खुद शायद हैरत के बाइस सकते की हालत में थी। रुमैसा को उस पर तर्स के साथ प्यार आया तो दोनों हाथों में चेहरा थामते पेशानी चूम ली। सदा सुहागन रहो। तुम्हारी किस्मत को सलाम है यार। तुमने जिसको चाहा, पहली नजर में मोहब्बत की, और एक हादसे ने तुम्हें उसी का बना दिया। वाह भाई वाह। मैंने अपनी हकीकत तुमसे इसलिए नहीं छुपाई थी कि मेरा मकसद तुम्हें सजा देने का था, क्योंकि मेरी नज़र में सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए जो खता करता है, बेकसूर को नहीं। जिस रोज़ तुम हवेली आई, मैं तुम्हारे पीछे ही आया था और सब देख रहा था, लेकिन इससे कबल के मैं बड़ी अम्मा को रोकता, तुमने खुद ही उनका हाथ रोक लिया। सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगा था तुम्हारा अंदाज। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक निडर लड़की ही मेरी बीवी बने। अदन को एक फोल्ड पर्चा आज सुबह रजिया ने दिया था, और इस वक्त वो कमरे में दीवार से टेक लगाए उसे नम आंखों से पढ़ रही थी। तुम्हारे लिए मैंने शॉपिंग भी की थी, जो मैंने रजिया को दी थी, और उसे मना किया था कि वो तुम्हें ना बताए। चौथे रोज जब तुम कामों से इनकार कर रही थी और मेरा यानी सिकंदर नाम लेने पर जब चाचू ने पलट कर देखा, मैं तभी फौरन पीछे हट गया। फिर मैं जब 18 रोज बाद आया तो तुम्हारी हालत देखकर हैरान रह गया। तुम इतना कैसे बदल गई थी? और मुझे तुम्हारा हारा हुआ वजूद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे शायद गुस्सा आया तुम पर, और यही गुस्सा मैंने जैद पर निकाल दिया, जिसका मुझे अभी तक दुख है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यही वजह थी मेरी तुमसे लाताल्लुकी की।
अगर मैंने तुम्हारा निडर अंदाज ना देखा होता तो मैं कभी तुम्हें यूं तन्हा ना छोड़ता। मैं तुम्हें अपने बुरे रवैये से उकसाता था कि आवाज उठाओ। तुम पूछो कि जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है वो सिकंदर है कहाँ, वो मेरे हकूक क्यों नहीं अदा कर रहा। मैं तुम्हारा मुंतजिर था। तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहने वाला पहला शख्स सिकंदर अहमद ही होता। मुझे दिन ब दिन तुम्हारे शिकस्त खुर्दा वजूद से झुंझुलाहट होने लगी। फिर मैंने गौर किया तो हकीकत का अदराक हुआ कि तुम्हारी इस कदर बदलने के पीछे मेरी ही जात थी। अदन ने बेसाख्ता सिसकी रोकी। अजीब बात है ना अदन सिकंदर, मैं जिस हस्ती को सर उठाकर पूरे हक से अपने घर में देखना चाहता था वो हस्ती मेरी ही वजह से बेतौकीर हो गई। ताई अम्मा, जैद, हत्ता के रजिया तक मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा करने के जतन करते रहे। फेरोज चाचू, अरसल, जैद तुम्हारे साथ बेरुखी का ड्रामा कर रहे थे। असल में वो मुझे गैरत दिलाना चाहते थे। वो मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा करना चाहते थे। भला उन्हें क्या खबर थी कि मैं तो कभी तुमसे गाफिल हुआ ही नहीं, तो मतवज्जा होने का क्या जवाज। अदन ने हथेली से आंसू रगड़े। फिर वो हादसा जब तुम कुएं में गिरी, उफ, मुझे लगा मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। तुम मेरी वजह से तकलीफ में थी। तभी जैद ने मुझे याद दिलाया। भाई, याद है आपको, एक लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, मुझे थप्पड़ भी मारा था, और जब मैंने आपसे उसका जिक्र किया तो आपने हंसते हुए कहा, आई जस्ट लव हर। अदन इस जुमले पर ठिठकी, दिल डूब कर उभरा। जैद के बताने पर पता चला कि वो तुम ही थी। तब मैं 4 माह बाद चौंका। हाँ, ये सच था, मुझे उस निडर लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिसने जैद की अकल ठिकाने लगाई थी। अदन के लबों को बेसाख्ता मुस्कुराहट छू गई, वजूद हल्का फुल्का हो गया। वो जुमला तो मैंने खैर गुस्से से कहा था, लेकिन अब यही हकीकत है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी अदन सिकंदर अहमद? आगे सफा खाली था। अदन उसे सीने पर रखे मुस्कुराते हुए लेट गई। माफी कैसी अहमद, मैं तो कभी आपसे नाराज थी ही नहीं। अहमद के दोस्त की शादी थी, पिछले 3 रोज से वो शहर में था। दर हकीकत वो अदन पर तमाम सच्चाई जाहिर करने के बाद सामने जाने से हिचकिचा रहा था। अदन ने सिर्फ एक ही बात कही थी जब ताई आबिदा और जैद उसे रजिया के कमरे से ले जाने के लिए आए थे। क्या मुझे इतना हक मिल सकता है अम्मा? उसने एक हाथ से सफिया और दूसरे से आबिदा का हाथ थामा। आंखों में आंसू थे। जैद बाहर निकल गया। वो आज भी इस लड़की को बेबस नहीं देख सकता था। उसे अपने भाई से इश्क था और इस लड़की को भी। उनकी जात का महवर एक ही हस्ती थी, तो दोनों का रिश्ता भी बहुत पाकीज़ा था। बोलो बेटी, क्या बात है? अम्मा ने उसके आंसू पोंछे तो उसने दोनों हाथ ताई के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे भी आपके बेटे की मौत का बहुत अफसोस है। मेरे बस में होता तो मैं उसे किसी तरह इस दुनिया में वापस ले आती। ऐसे मत कहो बेटा, तुम तो बेकसूर हो। ताई ने उसे सीने से लगा लिया। तुम कौन सा हक मांगना चाहती हो अदन? चंद लम्हों बाद ताई ने उसका चेहरा सामने किया जो आंसुओं से तर था। अगर आप दोनों कहेंगी तो मैं अभी आपके साथ चली जाऊंगी। मगर अम्मा, उसने आबदा की तरफ देखा। बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है? मैं चाहती हूँ मैं जिसके नाम से वाबस्ता होकर यहाँ आई हूँ वही मुझे यहाँ से ले जाए। उसने सर झुकाते हुए कहा तो दोनों मुस्कुरा दी। उन्हें भला क्या एतराज होना था? सिकंदर अहमद को गए हफ्ता होने वाला था और पिछले 3 रोज से अदन सिकंदर बुखार में मुब्तला थी और सुबह से गोया हवास जवाब दे रहे थे। फेरोज चाचू ने फोन करके सिकंदर को जल्द पहुंचने को कहा था। अदन का मुतालबा भी उस तक पहुंच चुका था। अरकम ने अदन को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। ताई अभी उसके पास से उठकर गई थी। वो निढाल सी दीवार के सहारे बैठी थी, आंखें बंद थीं। रजिया जाने कहाँ चली गई थी। तभी मैसेज मौसूल होने की आवाज आई। धड़कते दिल के साथ फोन उठाया। उसे एकदम अपने पास किसी महबूब हस्ती का गुमान हुआ था। एक तस्वीर मौसूल हुई थी। वाइट ब्राइडल ड्रेस में इंतहाई खूबसूरत ब्राइड, जिसके कदमों में दूल्हा दोनों हाथ फैलाए पंजे के बल बैठा, सर उठाए, उस शहजादी की मुस्कुराहट पर निसार हुआ था। साथ एक नज़म तहरीर थी। बस एक माफी हमारी, तौबा जो कभी सताएं तुमको, लो हाथ जोड़े कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। जो सच कहें तो तुम्हें तो गुस्से ने और दिलकश बना दिया है। हमारे मन को तो सूझती है कि और गुस्सा दिलाएं तुमको। तो क्या अब तक हमारी नजरों के सब तकाजों से बेखबर हो?
हमें तुमसे मोहब्बत है पगली, और अब कैसे बताएं तुमको। उसका चेहरा बेइंतहा सुर्ख हुआ। लबों पर मुस्कान लिए निगाह उठाई तो सामने दीवार से पुश टिकाए, सीने पर बाजू लपेटे, दिलकश मुस्कान और आंखों में महजूज और दिलचस्प सी कैफियत लिए वो पूरी तरह उसी की तरफ मतवज्जा था। अदन सिकंदर ने बौखला कर निगाह झुका ली। शुक्र खुदा का ये शख्स बोल नहीं सकता। बेकाबू होती धड़कनों के साथ उसने कलमा शुक्र अदा किया और सिकंदर अहमद जैसे उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़कर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। 11 माह बाद हवेली में उस रोज खुशी का समा था, क्योंकि उस रोज सिकंदर अहमद की बेटी का अकीका था। अनाया सिकंदर की सूरत हवेली के मकीनों के हाथ जीता जागता खिलौना आ चुका था। अरसल, जैद, सफिया, चाचू, आबिदा, पूरा दिन वो एक हाथ से दूसरे हाथ में सफ़र करती, जबकि अरकम तो खुशी से पागल हो चुका था। वो हमा वक्त उसे गोद में लेकर बैठे रहना चाहता था। ये मेरा बेबी है, पहली बार उसे गोद में लेते गोया ऐलान किया गया था। सिकंदर अहमद को वो सिर्फ रात को मुयस्सर होती थी जब वो उसे गोद में लेकर प्यार करता, वो भी तब जब अरकम सो चुका होता, क्योंकि वो जब तक नींद से बेहाल नहीं हो जाता था उनके कमरे में अनाया को गोद में लिए बैठा रहता। 5 माह कबल जैद और रुमैसा का निकाह हो चुका था। रुखसती उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद करार पाई थी। इस वक्त चाचू और सिकंदर अहमद हॉल कमरे में थे जब उन्होंने भतीजे का चेहरा देखा। बरखुरदार, कैसा महसूस हो रहा है वालिदे मोहतरम के ओहदे पर फाइज होकर? ब्लेस्ड चाचू, उसने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए इशारा किया। तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया था कि तुम्हें अदन से मोहब्बत थी, वो भी पहले से? क्या मतलब? अहमद हैरान हुआ। आपसे किसने कहा? उसने इशारे से पूछा। क्यों, तुम्ही ने तो जैद और अरसल को बताया था ना कि आई जस्ट लव हर। वो तो उस रोज गुस्से से मुंह से निकला था। उसका चेहरा अदन को देखकर सुर्ख हुआ, जिसकी गोद में अनाया थी, जबकि रजिया चाय लेकर आ रही थी। मैंने इसे कौन सा पहले देख रखा था चाचू। उसने उठकर बेटी को गोद में लेते उसकी पेशानी चूमी। सुभान अल्लाह, गुस्सा इतना दिलनशीन है तो प्यार फिर कैसा होगा? चाचू अशश कर उठे। सिकंदर अहमद नर्वस हुआ। मुझे तो किसी से मोहब्बत नहीं है, वो झुंझुलाया। तो फिर उस रोज क्यों कह रहे थे भाभी से कि उन्होंने आपका दिलाया जोड़ा पहन रखा है और वो अच्छी लग रही हैं? रजिया ने कहा तो सिकंदर ने बेयकीनी से उसे देखा, जबकि चाचू हंस पड़े। अदन मुस्कुरा दी। बेटा, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। फेरोज चाचू बहुत महजूज हुए तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। बाज़ औक़ात हम नहीं जानते कि जो अल्फाज हमारे लबों से अदा हो जाते हैं या जो चेहरा हमें पहली ही नज़र में अच्छा लगता है, वो हमारी तकदीर लिख रहे होते हैं, जैसा कि सिकंदर अहमद और अदन के साथ हुआ था।